चुपचाप, कोई बात नहीं करे. No one can talk. Today we are going to discuss, hello student, today we are going to discuss the important topic for standard 8, that is the story of Dolly, okay, a clone. So let me tell, hello, you come please. What's your name? Arav. Huh? Arav. Arav. So my student Arav has done the drawing. I was drawing, tried to drawing on this board, but he laughed at me. Okay, so I became angry that he is teasing me. Okay, insulting me. But at the same times, I thought that he might draw better than myself. So I have asked him to come and draw on the board, and he has drawn his own drawing. So I am proud of it, my student. Thank you, Arav. Okay. Thank you, sir. Now he has helped me to make this drawing. So I am proud of my student. Arav. So we are going to study what this dolly is, and the story begins from the year. You note down the 5th July 1996. It was the 5th July, right? 5th July 1996. Okay. The clone dolly was bought, first of all, and it died on 14 February 2003. So near about 6 years and 6 months. So 6.5 years for that a small short duration she survived. But it was one of the important discovery in the field of biology, you can say, and it is very proud moment for the human beings that we have able to make the clone. What do you mean by clone? First, let me clarify. What's a clonage? Clones are defined as genetically and morphologically identical. You can note down. कहीं लिख लो, बीच में बाद में उधर हेलो उस पेज से इधर दूसरे पेज में लिख लो क्लोनिंग को दूसरे पेज में लिखो. व्हाट्स द क्लोन CLONE क्लोन लिखो. जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल living beings are called clones. They are called clones. Genetically and morphologically identical, okay, living beings are called clone. Suppose that if you want to make my clone, similar type of teacher will here stand before you after my age, okay. The person who will be clone to me will be similar to myself. If I am going to make your clone, so at your age, that your clone will looks like you until the environmental factor is not affected. Okay? Environmental factors also steers the genetic factor. So the genetic potential, genetically and morphologically, from shape and size you appear to same. Color may be changed if you migrate to London or if you migrate to South Africa, your color might change. But shape, facial will be identical, similar. Okay? So that is clone. So now it was the surprising moment for the humanity that two female, this one is the female feet Dorset sheep, and this one is also a Scottish black face Ewe. It is also female. So here the fact you have to know that
two females together form a female young ones. It's a black fish, a Scottish black fish sea, and this one is a white fish, Phi Dorset sea. Now together they are going to make a white face. This is what, if it is white face, then the face of this dolly, this one is a dolly. The dolly produced by these two females, contribution of these two female sheep was similar to one of the Phi Dorset sheep. She was the clone to Phi Dorset sheep, but she was delivered. She was given birth by the black fish sheep. Try to understand. काली मुंह वाली ये जो sheep है, जिसका नाम है ब्लैक फिश स्कॉटिश ब्लैक फिश सी, ये बच्चे को जन्म दे रही है, लेकिन ये इसका बच्चा नहीं है। ये उस बच्चे को जन्म दे रही है जो इसका बच्चा है ही नहीं। ये बच्चा देखिए कैसे सोचने लगा, परेशान हो गया कि भाई ये जननी है, जन्म देने वाली माँ है। ऐसे मदर को सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेट मदर, माँ के पेट से निकल रहा है बच्चा, लेकिन उस माँ का वो बच्चा नहीं है। कैसा लग रहा है सुनने में? जिस माँ के पेट से बच्चा निकल रहा है, उस माँ का कोई कैरेक्टर उसमें नहीं है। तो काला मुंह वाला होना चाहिए ना। जब काला मुंह वाले सीप से बच्चा पैदा हो रहा है, तो मुंह इसका काला वाला होना चाहिए। ये व्हाइट वाला के जैसा कैसा हो गया? यही दुनिया को सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्लोन इसका बना, न कि इसका। लेकिन पेट से किसके निकल रहा है? This is dolly clown. This important things you have to understand. यही आपको समझना है कि कैसे होगी। तो देख जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? स्पर्म एंड ओवम मीट टुगेदर to give zygote, and zygote divide and redivide to give rise the, through embryogenesis and morphology give rise the baby which is delivered after the completion of the pregnancy period. Whatever you foresee, ठीक है, जो भी डेज है 150 डेज है, 200 है, 300 डेज है, जो भी है उतना तो नहीं है इन लोग का। 150 के आसपास 150 दिन का इन लोगों का रहता है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो 150 दिन के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है यहाँ, जिस माँ से बच्चा पैदा हो रहा है, उस माँ का बच्चा नहीं है वो, मतलब उसका कोई कैरेक्टर उसमें नहीं है। तो क्यों, कैसे हुआ? तो इसका एक कहता है कि इसका जो मेमोरी ग्लैंड होता है यहाँ, इसके मेमोरी ग्लैंड से एक निकाला, एक उसका मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाला। मेमोरी ग्लैंड की सेल होगी, तो इसके सेल को ले लिया और सेल में से क्या किए, बाकी सब चीज हटा दिए, उसका न्यूक्लियस ले। तो इसका न्यूक्लियस ले लिया गया। किसका न्यूक्लियस है ये? हाँ, इस व्हाइट फेस वाले, ठीक है, फिर डॉर्सेट का। और इसका जो ओवरी होगा, तो ओवरी के अंदर एग बनता है फीमेल में, जानते हो, पढ़े हो? तो उसका एग सेल लिया गया, तो इसका ले लिया गया एग। अब एग में कैसे सेल होते हैं भाई? एग में न्यूक्लियस कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। एग इज अ गेमिट, है ना। तो गेमिट सेल क्या होता है? मियोसिस के दौरान बनते हैं, तो हैप्लॉइड है, मतलब उनमें एक सेट क्रोमोसोम है। आइए जो हो गया, इसका सेल ले लिया मेमोरी ग्लैंड का, ये डिप्लॉइड है, तो इसमें 2 सेट है, 2 क्रोमोसोम है। इसका जो एग लिए, मान लीजिए एग है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो एन सेट वाला है। अब क्या किया गया कि इस एग के न्यूक्लियस को यहां से हटा दिया गया। देखिए, इसके एग के न्यूक्लियस को यहां से हटा दिए, न्यूक्लियस गया, और इस जगह पर, इस एग के जगह पर इस न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिया गया। समझिएगा, ये न्यूक्लियस कैसा है भाई? डिप्लॉयड। अब जरा पिछले जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन आता है उसकी प्रक्रिया देखिए। ये स्पर्म है,
स्पर्म के पास में भी एन, और ये एग है, इसके पास में भी एन, और ये दोनों एन एन मिलकर के क्या बना दिया, 2NN हैप्लॉइड। हैप्लॉइड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म contain one single set of a chromosome called haploid, जैसे गेमिट्स होते हैं। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बनाया, या सीधे डिप्लॉइड को ट्रांसफर कर दिए कि में। नाउ एक बिहेव्स लाइक अ डिप्लॉइड, अब एक जाइगोट बन गई, एक यहाँ अब एक नहीं रही, ऐसे ही ट्रांसफर कर दिए, ये जाइगोट बन गई। और इस जाइगोट को फिर उस मदर्स के उम्ब में ट्रांसफर कराया। जाइगोट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उस जाइगोट को डिवाइड होने देते हैं, जैसे आप आईवीएफ करते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट से कुछ 10 सेल 20 50 सेल 32 सेल का होता है, 32 सेल का ब्लास्टोसिस्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो उस तरह के उसको ब्लास्टोसिस्ट लेयर में, मतलब क्लीवेज में कुछ एम्ब्रायो टाइप का स्टेज में कुछ सेल को हम लोग इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा, जैसा कि नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है। अब वो या तो जाइगोट है या फिर जाइगोट से आगे का कुछ सेल का स्ट्रक्चर है, दैट में बी इम्प्लांटेड, वो उसके यूटेरस में जाके इम्प्लांट होगा, जैसे मम्मी के पेट में बच्चा हो जाता है तो ऐसे होगा, बढ़ेगा, वहां जाके सट जाएगा, इम्प्लांट होगा, वहां से वो अपना न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से लेते रहेगा, बढ़ेगा 150 दिन, जितना दिन का उसका गेस्टेशन पीरियड है, उसके बाद वो डिलीवर होगा। तो डॉली भी डिलीवर हुई। अब डॉली जो डिलीवर हुई उसको आश्चर्यचकित लोग रह गया कि वो डॉली तो किस माँ से हुई, ब्लैक फेस ईवी के माँ मदर से हुई वो, लेकिन उस ब्लैक फेस ईवी का कोई उसमें कैरेक्टर नहीं, यानी कि इसने जननी तो है, ये जन्म तो दी बट मदर नहीं बन पाई। जो रियल में माँ बनना होता है, माँ का कैरेक्टर मतलब उसका बच्चा होना चाहिए, तब ना वो मदर हुई, तो जननी हुई, मदर नहीं। इसलिए हम लोग के शब्द में, हिंदी के डिक्शनरी में ये सब शब्द है। माताएं अलग होती हैं, जननी और अलग होगी, देखिए शब्द में अंतर बदल गया। जननी जो जन्म देती है, तो जननी में नॉट भी मदर, वो मदर नहीं भी हो सकती है। जिसके पेट से बच्चा जन्म लिया वो उसका नहीं भी हो सकता। वो एक तरह से हायर कर लिया अपने उम्ब को, जो आजकल खूब वो कर रहे हैं लोग, और ये टेक्निक है, अवेलेबल है कि आप भाई किसी को भी आप हायर कर सकते हो उसके उम्ब को, यदि वो इनकेपेबल है, जिसको IVF कहते हो। IVF टेक्नोलॉजी में जाओगे पढ़ोगे तो सब डिटेल में 12 में पढ़ाया जाता है कि बहुत सारे इसके टेक्निक्स हैं, जिसके आधार पर मेल में भी इनकेपेबल है, फीमेल भी इनकेपेबल है, तो वो अपना दोनों ही नहीं है, हस्बैंड नहीं है, फिर भी औरत चाहे मान लीजिए लड़ाई में गए, हस्बैंड मर गए, औरत चाह रहे कि मेरा ही बच्चा हो और उन्हीं का हो, तो यदि उनके सीमेंट को कंट्रोल कहीं कलेक्ट करके रख गए होंगे और बेचारे शहीद हो गए, तो उनसे फिर उनका बच्चा पैदा किया जा सकता है। हाँ बोलो, क्यों एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा था जी। नॉट ऑलवेज, IVF में अपना भी बच्चा हो सकता है। मान लीजिए किसी कारण से इनकेपेबल है, कहीं ये प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस आ रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, स्पर्म इनकेपेबल है, तो ये सब को लोग ओवरटेक करते हैं। जैसे आप चले नहीं रहे हैं, कोई आपको सहारा लगा के पहुंचा दिया बाथरूम, तो कुछ उस तरह की घटना होती है, आपको फिर से उसमें कैपेबल बनाया जाता है। तो हो सकता है उन्हीं का चाइल्ड हो सकता है उनका नहीं भी हो, दूसरे का भी हो सकता है। IVF तो कर रहा है तो कहीं का स्पर्म, कहीं का आप एक ओवम ले सकते हो, किसी को मदर बना सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके पास सारा अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में सब हो सकता है, आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने को मिले। तो दुनिया IVF से तो आगे बढ़ती जा रही है। तो यही डॉली के बारे में आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि नेम अ वर्जिन मदर, वर्जिन मदर का नाम बताइए, कोई बताइए। वर्जिन मदर वो मदर हुई जिसने कभी किसी पुरुष के पास गई नहीं और उसके पेट में बच्चा हो गया। कौन है, बोलिए कौन है? हाँ, मदर मैरियम, यस। जीसस क्राइस्ट को माना जाता है कि हर मदर वाज वर्जिन मदर। वो ऐसी माँ है, जीसस क्राइस्ट के फादर नहीं माने जाते हैं,
जहाँ तक है ना मुझे जानकारी है कि वो बिना फादर के बच्चा पैदा, बट ही क्लेम दैट ही इज द सन ऑफ गॉड, वो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ने उनको भेजा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें आपको इस तरह की बातें हैं कही गई हैं। रिलीजन्स में भी, फिक्शन है या जो भी है, रिलीजियस बुक में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो यहाँ हम लोग साइंस भी कुछ इसी तरह का करके मिलता जुलता स्टेप आपको यहाँ लगेगा कि बिना फादर का यहाँ बच्चा जन्म ले रहा है। ये डॉली फादरलेस है, इसके फादर नहीं है, दो माताएं मिल करके एक बच्ची को जन्म दे रही है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है कि फीमेल को जन्म दे रही है, मेल नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन वहाँ मदर मैरियम में क्या है, मदर मैरी मदर है और सन को जब जन्म दे रही है, तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी होगी। अब क्या होगी तो भगवान जाने, है ना, भगवान की लीला, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया डॉली के बारे में। और कोई दिक्कत इसमें? स्टेप क्या है भाई? तो फीमेल याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। फीमेल इसके डॉर्सेट फीमेल सीक के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाला गया, उसका मेमोरी ग्लैंड से उसका नॉर्मल सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस निकाला। ये इसका न्यूक्लियस है, इसको समझिएगा, ये न्यूक्लियस है। तो इसका हमने न्यूक्लियस निकाल लिया और इसका जो न्यूक्लियस था फीमेल का एग का, इस ब्लैक स्कॉटिश फेस इवी के न्यूक्लियस का हमने एग निकाल लिया और एग से न्यूक्लियस हटा दिया और उस इम्प्टी एग के अंदर इस न्यूक्लियस को ट्रांसफर करा गया। तो न्यूक्लियस के पास ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पर कैरेक्टर होता है, जैसा क्रोमोसोम वैसा जीन वैसा कैरेक्टर। तो जीन हमने दे दिया व्हाइट का, तो बच्ची कैसी बनेगी? ब्लैक जैसी। जैसा आपका जीन होगा, आपका मॉर्फोलॉजी, आपका फिनोटाइप भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। यदि मम्मी पापा गोरा वाला जीन दे दिए तो आप गोरा बनिएगा, लंबा वाला दे दिए तो लंबा बनिएगा, छोटा वाला दे दिए तो छोटा बनिएगा। जैसा जीन जीनोटाइप वैसा ही फिनोटाइप। बट इन्वायरमेंट भी कुछ इफेक्ट करता है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, वो अलग बात है, वो अलग कभी डिस्कस करें। तो थैंक यू एवरीवन, यू हैव अंडरस्टूड द डॉली। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर हो गया? कोई लड़का आके समझाएगा? फीडबैक कोई आके समझाएगा यहाँ? हाँ, जो समझा है तुम बनाया है, और तुम बनाए हो, और एनीवन कैन एक्सप्लेन? नो, थैंक यू।